morning, students. I hope you all are doing well. Today, we are going to start EVS 3, lesson number 1, that is plants around us, and unit 1, that is living things. So, we will learn in this chapter that what are the plants around us, and let's see the learning objectives over here. Types of plants means what are the types of plants are there? Where do plants grow? So plants grow कहाँ करती है? Next, uses of plants. What are the uses of plants? So let's start the chapter. Plants are found almost everywhere on the earth, in the water and on the land. Plants basically हमें हर जगह अर्थ में पाई जाती है, water में भी, land में भी. Plants are found in different sizes and shapes. Plants के अलग अलग sizes भी होते हैं, shapes भी होते हैं. Plants sizes में बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, and shapes में मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं. They make their own food. This is very important, students, because plants make their own food and gives us many things like food and clothing. So basically, plant हमें even though खुद खाना बनाती है, हमें खाना देती भी है, food देती है, और सिर्फ food नहीं देती है, हमें कपड़े बनाने के लिए raw materials भी देती है. They make our environment beautiful and help us to breathe. So ये हमारी environment को क्या बनाती है? सुंदर बनाती है, beautiful बनाती है, and हमें help करती है breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए. So here are the info bits. At night, plants breathe like us. At night, रात को क्या होता है? Plant हमारी तरह breathe करती है. आप पूछोगे मैम हमारी तरह कैसे? They take in oxygen and give out carbon dioxide. Like दिन में क्या करती है plants? Daytime में plants और carbon dioxide intake करती है and gives out the oxygen. But in night, they used to take in the oxygen and give out the carbon dioxide. Whereas during the day, they take in carbon dioxide and give out oxygen. Now, let's go to the next topic. Now, let's see, students, type of plants. Very big, tall, strong plants like neem, gulmohar, banyan, mango are called trees. बेसिकली जो बड़े पेड़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज? दैट आर गुलमोहर, banyan, mango, and many other trees are there. So these are the examples, some examples of trees. Now they have some special characteristics. Trees have some special characteristics that are they have thick, brown, woody stem. उनकी स्टेम कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, ब्राउन कलर की होती है, एंड वुडी होती है. वुडी मतलब बहुत ज्यादा लकड़ी, मतलब बेसिकली जिससे हमें वुड ज्यादा मिल सके, वैसी होती है. कॉल द ट्रंक, और हम उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. लाइक दिस, वी कॉल दिस ट्रंक. नाउ मोस्ट ट्रीज लीव फॉर मेनी इयर्स. बहुत सारे ट्रीज तो बहुत सालों साल तक जिंदा रहते हैं. लाइक ओक ट्री नेवर डाई नहीं बोलूंगी, बट ओक ट्री लिव्स फॉर 100 years. यूज्ड टू से दैट पीपल. सो बेसिकली ओक ट्री 100 years तक रह सकते हैं, ये लोग बोलते हैं. सो इसी तरीके से बहुत पेड़ सालों साल तक रहते हैं जिंदा. नाउ small bushy plants like rose, hibiscus and mehendi are called shrubs. तो जो shrubs होते हैं वो बेसिकली छोटे होते हैं साइज में, एंड उनका प्लांट कैसा होता है? बुशी होता है. बुशी मतलब बहुत ज्यादा घना, वैसा होता है. एंड उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? हिबिस्कस एंड रोज. दे आर स्मॉलर देन ट्रीज. एक तो वो छोटे होते हैं हाइट में ट्रीज से, एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम्स. और उनके स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और थिन होते हैं. थिन मतलब पतले.
they have many branches and they used to have many branches. Trees में जितना branches नहीं होता, लेकिन shrubs में बहुत ज़्यादा branches होते हैं. They also live for many years and they also live for many years. Very small plants like spinach, grass and mint have thin weak stem and live only for one season. जो सबसे छोटे वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, ग्रास हो गया, मिंट हो गया, ये बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, वीक होते हैं इनके स्टेम, एंड ये सिर्फ एक सीजन के लिए ही रह सकते हैं. लाइक आफ्टर ए सीजन दे डाई. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. इनको क्या कहते हैं हम? हर्ब्स कहते हैं. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्लांट. फर्स्ट इज ट्रीज, नेक्स्ट इज shrub एंड थर्ड इज हर्ब्स. Now let's see the next part, that is weak plants such as pea plant, grapevine and money plant have thin stem and need support to stand. They are called climbers. So basically और भी ऐसे plants होते हैं जो थोड़े weak sort of होते हैं, and weak in the sense जैसे कि उनको support चाहिए होता है, उनके stems थोड़े पतले होते हैं, कुछ ज़्यादा उनको support चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? Climbers कहते हैं. सो बेसिकली जैसे ये ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे एक हमने ट्रंक लगा रखा है, एक स्टेम नहीं, बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम लगा रखा है जिसके अराउंड में बेसिकली ग्रेप्स उग रही है. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिकली क्लाइंबर्स, दैट इज पी प्लांट. नाउ let's see next. Weak plants such as pumpkin, muskmelon and watermelon have thin soft stem. They grow all along the ground and are called creepers. So basically creeper कौन होते हैं? जिनके fruits बहुत heavy होते हैं. तो और stem कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा weak होते हैं, जिस वजह से वो stem खड़े नहीं हो पाते heavy fruits के वजह से. तो they just lie down on the ground. So, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं. क्रीपर्स का एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन, मस्कमेलन, फिर पंपकिन. दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स. नाउ लेट्स सी वेयर डू प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स ग्रो कहाँ करती है? प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. प्लांट्स हर जगह ग्रो कर जाती है. जहाँ पे सॉइल रहेगा वहां पे प्लांट्स ग्रो कर जाएगा. ऑन लैंड एंड इन और नियर वाटर. बेसिकली वाटर के पास भी, वाटर में भी और लैंड में तो ग्रो करती है. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, द प्लांट दैट ग्रोज ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, जमीन. जमीन को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं. नाउ फैक्ट फाइंडर इज Bamboo is an extremely rapid growing plant. सबसे तेजी से ग्रो करने वाला अगर कोई प्लांट है, then that is bamboo. Now types of terrestrial plants. अब हम देखते हैं किस तरीके के प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स. अब डेजर्ट प्लांट्स मतलब डेजर्ट में कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं? कैक्टस एंड डेट पाम grow on in hot, dry desert where there is very little or no rainfall. The leaves of cactus are reduced to spine. So basically, cactus जो होते हैं, जो date plants जो होते हैं, या फिर palm plants जो होते हैं, they used to grow in desert क्योंकि उनको ज़्यादा water की need नहीं होती. और desert में वैसे ही गर्मी की वजह से there is a shortage of, there always being a shortage of water. सो लीव्स जो है कैक्टस के, वो बेसिकली स्पाइन्स के रूप में कन्वर्टेड रहते हैं. वो स्पाइन्स में बेसिकली क्या करते हैं? वो स्पाइन्स इसीलिए ग्रो करते हैं ताकि एक तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एनिमल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके लीव्स में बहुत ज्यादा वाटर स्टोर्ड रहता है. नाउ नेक्स्ट इज प्लांटिंग हिल्स. सी द पिक्चर ऑफ cactus over here. Now hills के plants कैसे होते हैं? We will see that. Pine and spruce are plants that grow in the hills. Pine और spruce एक ऐसे टाइप के प्लांट है
जो हिल्स में ग्रो होता है, वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई, जहाँ पे क्लाइमेट कैसी रहती है, मतलब वेदर कैसा रहता है वहां का, हमेशा क्लाइमेट इज बेसिकली जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा हो, तो बेसिकली वहां का वेदर एक स्टैग्नेंट वेदर, कंटिन्यूएशन वाला वेदर, वो क्या होता है, बेसिकली ड्राई होता है और ठंडा होता है। नाउ यहाँ पे हिली एरियाज आर कवर्ड विथ कॉनिफेरस ट्रीज दैट आर टॉल एंड हैव नीडल लाइक लीव्स। तो इस हिल्स में बेसिकली कॉनिफेरस ट्रीज उगते हैं। कॉनिफेरस मतलब कोन शेप के ट्रीज। The trees that are in shape of cone is known as coniferous trees. तो वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं एक तो, एंड इनके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आर द लीव्स आर नीडल लाइक स्ट्रक्चर। नीडल लाइक इसीलिए होते हैं ताकि, क्योंकि एक तो ऐसे प्लांट, ऐसे ट्रीज बेसिकली आपके पहाड़ों में उगती है और पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश या फिर स्नोफॉल होता है। सो बेसिकली बारिश बहुत ज्यादा होती है एंड स्नोफॉल होने की वजह से, स्नोफॉल भी हो, स्नोफॉल अगर होती है तो ये प्लांट्स क्या करती है, अपने लीव्स से बेसिकली उसको रहने नहीं देती, स्नो को लेट डाउन कर देती है, नीचे गिरा देती है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ वाटर भी यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर सकती, वो नीचे आ जाती है। नाउ प्लांट्स इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदल वाली जगह, जहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लैंड की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज वेयर द सॉइल इज स्टिकी एंड waterlogged आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। जहां पे बेसिकली मतलब मार्शी एरिया वो होता है जो पानी के बिल्कुल, नदी के या फिर पोंड के या फिर लेक के बिल्कुल किनारे वाले जगह हो, जिस जगह पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एंड लैंड की क्वांटिटी कम होती है, तो उसको मार्शी एरिया कहते हैं। तो वहां पे जो प्लांट ग्रो होता है वो बेसिकली उसकी सॉइल कैसी होती है, स्टिकी होती है, एंड वहां के वाटर जो है वो लॉक्ड रहते हैं। लॉक्ड मतलब पानी बहुत ज्यादा सॉइल में प्रेजेंट रहता है। एंड उस जगह पे कौन सी ट्रीज ग्रो करती है, मैनग्रोव ट्रीज ग्रो करती है। These plants have breathing roots. अब पूछोगे आप कि डेफिनेटली रूट्स अगर सॉइल के नीचे, रूट सॉइल के नीचे होता है, तो अगर पानी अगर ज्यादा होगा तो रूट्स डेफिनेटली इट विल डाई, वो मर जाएगा, क्योंकि रूट्स को ज्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है हमेशा। बट इट हैज अ स्पेशल रूट्स, मैनग्रोव का। इसका रूट्स क्या होता है, बेसिकली दैट ग्रोज अबव द सॉइल। इसके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से निकल के ग्रो करते हैं, जैसे कि ये जो मैंग्रोव ट्री का जो रूट्स होते हैं ये सॉइल के अंदर नहीं होते, ये सॉइल के बाहर होते हैं, टू टेक इन एयर, ताकि ये हवा मतलब बेसिकली एयर ले सके। नाउ नेक्स्ट इज एक्वाटिक प्लांट्स। Okay, now we will see the types of aquatic plants. Aquatic का मतलब होता है पानी, terrestrial जैसे land वैसे ही aquatic पानी। Now the plant that grow in water or near water are called aquatic plants. So basically जो plant water में grow करता है and water के पास grow करता है उसको हम aquatic plants कहते हैं। Now floating plants. Floating plants क्या होता है? अब duckweed and wolfia are floating plants. Floating plants में this is one of the example. ये floating plants क्या होती है, ये water में हमेशा float करती रहती है, मतलब तैरती रहती है। इसके roots नीचे कहीं पे भी वो नहीं होते, stick नहीं रहते। So basically it always move with the flow of the water. Next is fixed plant. Lotus and water lily are fixed plant. लोटस और वाटर लिली के जो रूट्स होते हैं वो नीचे, वाटर के नीचे फिक्स्ड रहते हैं, तो इसीलिए वो मूव नहीं करते, वाटर की कितनी भी लहरें आ जाए वो मूव नहीं करते हैं। कौन? लोटस एंड वाटर लिली। दे आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, तो वो वाटर के बेड में बेसिकली फिक्स्ड रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट क्या होता है?
Hydrilla and tape grasses are submerged plant. Submerged मतलब जो ऑलमोस्ट पूरा डूबा हुआ हो, जो प्लांट ऑलमोस्ट पूरा वाटर बेड में होता है, मतलब पूरा नीचे होता है वाटर के, उसको हम सबमर्ज प्लांट कहते हैं. और उस पे हाइड्रिला इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड टेप ग्रास इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट. नाउ सम अनयूजुअल प्लांट्स. Moles, mushroom, yeast are non-green plants. They get their food from dead and decaying plants and animals. So basically moles जो होते हैं, mushroom जो होते हैं, या फिर yeast जो होते हैं, वो basically non-green plants होते हैं. Like the green plants prepare their own food, right? So non-green plants जो होते हैं, वो तो अपना खाना खुद prepare कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास chlorophyll होता ही नहीं है. So, what does they do? They get their food from dead and decaying plants and animals. मतलब मरे हुए जो plants और animals होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं plants और animals, उनसे वो nutrition लेते हैं, उनसे खाना लेते हैं. अब पूछोगे जो मर चुका है उनसे खाना कैसे ले? But उनको सड़ने में जो help करता है, वो ये ऐसे plants help करता है. जो प्लांट्स और एनिमल्स को जो सड़ने में हेल्प करता है मरने के बाद, वो ये लोग होते हैं, यीस्ट, मशरूम्स एंड मोल्स. सो बेसिकली ये वही उगते हैं, ये वही से जिंदा रहते हैं. नेक्स्ट इज सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं. A Venus flytrap catches an insect between its leaves. The pitcher plant and sundew also eat insects. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, ना वो डेड और डिकेइंग प्लांट से या फिर एनिमल से अपना खाना लेते हैं. वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. अब वो इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं? बेसिकली ये जो प्लांट होते हैं ये बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं. ये देखने में ऐसा लगता है कि कितना अलग सा है. तो इसके ये अंदर वाला पार्ट को बेसिकली कौन अट्रैक्ट करता है? इसके ये अंदर वाले पार्ट को इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर यहाँ पे बैठती है. तो जब इंसेक्ट वहां पर बैठती है और इस प्लांट को पता चलता है, देन इसके जो मुंह जो खुली हुई रहती है, इट सडनली फ्लैप डाउन, मतलब इसका मुंह एकदम से बंद हो जाता है. तो इस तरीके से ये अपने इंसेक्ट को खा लेती है. इसको वीनस फ्लाईट्रैप कहा जाता है, या फिर ऐसे प्लांट को वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं, या फिर पिचर प्लांट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की यूजेस क्या है, हमको जरूरत क्या है हमको. फर्स्ट, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्लांट्स हमारे लिए जरूरी है क्योंकि दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. हम प्लांट्स को क्या कह के बुला सकते हैं? आवर ग्रीन फ्रेंड्स, मतलब ग्रीन कलर के फ्रेंड्स. एंड व्हाई डू वी कॉल देम फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हमारे लिए फ्रेंड्स का मतलब क्या है? बेसिकली द वन हु हेल्प अस इन एवरी नीड, राइट? जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमें उनकी हेल्प मिलती है. सो प्लांट्स की हमें कैसे हेल्प मिलती है? इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली प्लांट्स गिव्स अस. नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्लांट गिव्स अस फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफी, शुगर एंड ऑयल. प्लांट्स ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ऑयल हो, पल्सेस हो, कोई भी खाने की चीज हो, बेसिकली हमें प्लांट से मिलती है. जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो मिलती है. थर्ड, प्लांट्स गिव्स अस रबर, पेपर एंड ऑयल. प्लांट हमें क्या देती है? रबर देती है, पेपर देती है, ऑयल देती है. नाउ फोर्थ इज प्लांट गिव्स अस फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट. We make clothes from fiber. प्लांट हमें फाइबर भी देती है. फाइबर मतलब बेसिकली धागे, जिससे हम कपड़े पहनते हैं इन डिफरेंट सीजन्स. नेक्स्ट, we make many medicines from plants such as नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस. हम बहुत अलग अलग मेडिसिन भी बनाते हैं प्लांट से. नीम से बनाते हैं, तुलसी से बनाते हैं, यूकेलिप्टस से बनाते हैं. हम इन सब से मेडिसिन भी बनाते हैं. नाउ वी यूज वुड ऑफ ट्रीज सच एज टीक फॉर मेकिंग फर्नीचर, टॉयज एंड पेपर.
हम बेसिकली वुड का भी यूज करते हैं प्लांट का, ताकि हम फर्नीचर बना सके, टॉय बना सके एंड डिफरेंट चीजें बना सके. नाउ लास्ट इज woods of trees are also used as fuel for fire and light. जो वुड होता है ट्रीज का, हम उसको फायर के लिए भी यूज करते हैं एंड लाइट के लिए भी यूज करते हैं. लाइट मतलब बेसिकली जब कहीं पे लाइट चली गई हो, कोई गांव जैसे जगह हो, तो उन लोग वहां पे क्या करते हैं, लकड़ी को जला देते हैं ताकि उनको रोशनी मिल सके. बिकॉज फायर ऑल्सो गिव्स अस लाइट. लेट मी answer. A. Do you get oil from plants? So children, do let us know that do you get oil from plants, or if you do, then what kind of oil do you get from plants? So B. How often do you water plants? And children, do let us know this as well कि क्या आप पौधे को पानी देते हो? आपके घर पे पौधे हैं तो कौन से पौधे हैं और आप पानी देते हो या नहीं देते हो, इनके बारे में भी बताना. सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी न्यू दैट कि हमें ये चीज पता चल चुका है कि पेड़ से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है. सो यहाँ पे वही पिक्चर आपके सामने है कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर, फाइबर, फिर ऑयल्स, शुगर, डेट्स, पेपर. These are the examples that basically we get from plants. Some more uses of plants. कुछ और भी जरूरत जो plants हमें देती है. And that uses are basically very important for us as well. So, plants keep the air clean by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. Plant क्या करती है, हमारे environment में जो air है उसको वो clean रखने की कोशिश करती है. अब क्लीन वो कैसे रखती है? बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्सॉर्ब करती है, अपने अंदर लेती है एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन को वो अपने अंदर से क्या करती है, रिलीज करती है फॉर अस. नाउ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर लैंडस्केपिंग एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल. प्लांट्स बेसिकली, अगर प्लांट्स होते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत सुंदर लगता है आसपास का जगह, फ्रेश ग्रीन फील होता है. तो वही बेसिकली कि प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में ब्यूटीफुल एलिमेंट ऐड करती है. नेक्स्ट, प्लांट गिव्स अस शेड. अगर रास्ते में कभी आप धूप में चलते चलते अगर आप थक जाते हो, इफ यू नीड अ शेड, बेसिकली आपको अगर कहीं पे शेड चाहिए होती है तो आप एक प्लांट के नीचे खड़े हो जाते हो. तो उससे हमें क्या मिलती है, बेसिकली इस तरीके से प्लांट हमें क्या देती है, शेड देती है. Plants are home to many birds and animals, and very important part is this, that plant is basically somebody's home as well. So we shouldn't cut the plant. So students, do remember that कि plants birds के और कुछ animals के घर भी हुआ करते हैं, right? Now new plants. There are many new plants, fruits, vegetables available in the market. Nowadays, that were not there when our grandparents were children. Broccoli, vegetable, quinoa, fruit, soybean, crop, and tulips, flowers are some examples of new plants. Many plants were grown in the other countries and brought to India. So basically students, यहाँ पे हम fruits and vegetables तो market में तो plants के help से अवेलेबल होता ही है, ठीक है. एंड बट ऐसे भी कुछ फ्रूट्स एंड प्लांट्स है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट वेल अवेयर ऑफ. सो बेसिकली उनको पता नहीं होता है कि ये कैसा टाइप का सब्जी है जो आज की डेट में हम खाते भी हैं. कुछ जैसे कि ब्रोकली हो गया, किनो हो गया, फिर सोयाबीन हो गया, ट्यूलिप हो गया. सो इस तरीके के नए प्लांट्स भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है. एंड कुछ यहाँ पे ग्रो किया जाता है विद इन इंडिया एंड कुछ को हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं. सो प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. प्लांट्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी शुड टेक केयर ऑफ देम. सो बेसिकली अगर प्लांट हमारे लिए इतना यूजफुल है तो वी शुड टेक केयर ऑफ देम. सो स्टूडेंट्स,
जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, ये कहाँ से आती है? आई गेस आपको ये सारे पिक्चर्स देखते से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से टाइप के फ्रूट्स है. सो लेट्स सी. लीची. लीची कम्स फ्रॉम चाइना. लीची कहाँ से आती है? चाइना से आती है. बट वी कैन सी सम इवन दो ट्रीज ऑफ लीची ओवर इंडिया एज वेल. इंडिया में भी आजकल ग्रो किया जाता है. कीवी. कीवी पहले जब आई थी पहली बार, दैट केम फ्रॉम न्यूजीलैंड. कीवी पहली बार इंडिया में कैसे आई थी? न्यूजीलैंड से आई थी. किनो. किनो बेसिकली हैज कम फ्रॉम कैलिफोर्निया. किनो कहाँ से आया है? कैलिफोर्निया से आया है. Students, we have completed the chapter. So let's see the summary of it. Plants are found almost everywhere on the land and in water. So basically हमने जैसे पढ़ा कि प्लांट लैंड में भी पाया जाता है, प्लांट वाटर में भी ग्रो किया जाता है. Trees, shrubs, herbs, climbers, creepers are different types of plants. Trees होते हैं, shrubs होते हैं, herbs होते हैं, climbers, creepers. These are various kinds of plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. जो प्लांट बेसिकली लैंड में ग्रो होती है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. Plants that grow in or near water are called aquatic plants. जो प्लांट बेसिकली वाटर के अंदर, वाटर के आसपास, वाटर के बाहर ग्रो होती है, दैट इज नोन एज aquatic plants. Plants gives us many things. Plants हमें बहुत सारी चीजें देती है. We should take care of plants. So, students, we should take care of plants. Now, students, let's do the exercise part. A. Take the correct option. A. Where does lotus grow? Lotus कहाँ grow करती है? Mountain, water, or trees? Lotus grows on water. Second, which one is shrub? इनमें से shrub कौन सा है? गुलमोहर, rose or mint? The shrub is rose. C. Which one is a tree? इन तीनों में से tree कौन सी है? Mango, hibiscus or rose? It's mango. Now D. Which one is an insect eater? इनमें से insect कौन खाता है? कौन सा plant खाता है? Moles, mushroom or pitcher plant? It's pitcher plant. So students, let's do the B section, that is fill in the blanks. Dash have many branches. किसके पास ज्यादा branches होते हैं? Shrubs have many branches. Now dash grow along the ground. Ground में कौन grow होता है? Ground में creepers grow around the ground. Okay. C. We make furniture from. हम furniture किससे बनाते हैं? We make furniture from plants. हम basically plants से furniture बनाते हैं. Now D. Kiwi has come from. Kiwi कहाँ से आई है? Kiwi has come from New Zealand. Now fourth is lychee has come from. Lychee कहाँ से आई है? Lychee has come from China. Okay. Now students, let's do the C section, that is answer the following question in very short. Very short मतलब छोटा आंसर देना है हमें. Name a herb. आप एक herb plant का नाम बताओ. Let me tell you. It is a mint leaves. Mint plant. Okay, now B. Which type of plants grow in a desert? कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं डेजर्ट में? कैक्टस. Cactus type of plant grow in desert. Now, students, let's do the D part. Answer the following question. So, A. What is a tree? Tree होती क्या है? Big, tall, and strong plant are called trees. ट्रीज कौन होते हैं? ट्रीज बेसिकली बड़े, टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को कहा जाता है.
नाउ व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब किसको कहते हैं? स्मॉल, वीक and thin plants are called herbs. जो प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं एंड वीक होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. नाउ व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है? The plants that grows on land are called terrestrial plant. So, जो प्लांट बेसिकली लैंड पे ग्रो करती है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. नाउ व्हाट आर aquatic plants? The plant that grows on or in or near water are called aquatic plants. मतलब या फिर वाटर के ऊपर या फिर वाटर के अंदर या फिर वाटर के पास में जो प्लांट ग्रो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. नाउ प्लांट्स, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, फूड, next furniture, next medicines, etc. प्लांट्स बेसिकली ये सारी चीजें हमें देती है. आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपना. नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी टाइम्स. A. Make a chart on types of plants and hang it in your class. So basically you have to make a chart on the types of plants and अपने क्लास में जरूर hang कीजिएगा. B. Paste pictures of 6 things we get from plants around this tree. Use old newspaper and magazine to find the pictures. So basically आपको कुछ pictures चिपकानी है जो हमें प्लांट से मिलती है and you should get it from old newspaper, magazine or whatever, wherever you wanted to get it from. Pictures आपको basically इस tree के आसपास आपको चिपकानी है, मतलब paste करना है. So next is write few suggestions how to make earth beautiful by planting trees. So students, you have to write it that how we can make earth beautiful by planting trees. So that's all with this chapter. I hope you understood this chapter. See you in the next chapter. Till then, take care. Goodbye.